নমস্কার, প্যারাডাইস ইনক্রেডিবলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই সুস্বাগতম, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজকে প্রতিবেদন রেল পরিবহন বিষয়ক। পশ্চিমবাংলার হুগলির বামুনাড়ির হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড 1984 সাল থেকে যে বিশেষ পরিষেবা দিয়ে চলেছে তার ভূমিকা কে না জানে। প্রায় 85 একর আয়তনের এই সুবৃহৎ রেল কারখানা সাম্রাজ্যটি আজও ঐতিহ্যের চূড়ায়। এখানকার প্লান্ট ম্যানেজার শ্রী সোমনাথ গুপ্তাজি এবং প্রধান আধিকারিক শ্রী সন্দীপ মান্না মহাশয়দের আনুকূল্যে আমরা এই কারখানাটি দেখার সুযোগ পেলাম। এজন্য ওনাদের ও অন্যান্য অফিসার ও কর্মচারীদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। এটা মেনলি বগি শপ, যেখানে বগি তৈরি হচ্ছে, যার উপরে ওয়াগন তৈরি। তো এটা একটা বগি যেটাতে দুখানা সাইড ফ্রেম লাগানো আছে, আপনি দেখতে, আর একটা মাঝখানে বোস্টার দিয়ে আছে। এই তিনটে কাস্টিংকে মিলে বলা হয়, আমরা বলি বগি। যেটা আবার আমি বলছি ওয়াগনের নিচে যে চাকা, তার উপরেই ওয়াগন তৈরি হয়, স্ট্রাকচার তৈরি হয়। সেটা আপনি এখন দেখবেন কীভাবে এই অ্যাসেম্বলড বগি এটাকে আমরা ওই দুটো চাকা উপরে লাগাবো। এটাকে হুইল অ্যান্ড এক্সেল বলা হয়, হুইল অ্যান্ড এক্সেল। এটাতে মাঝখানে এক্সেল আছে আর দুটো হুইল আছে এটা, আর এর উপরে এই বগিটা স্ট্রাকচার হয়। দেখুন প্রসেসটা দেখে নেন। এই দুটো সাইড ফ্রেমটা এটা ফিটিং করা হচ্ছে, এটা বিজি লাইন, ব্রড গেজ লাইন, ওকে। There are two wheels assembly. There are four wheels. There are bearing as a bearing. These are bearing parts. That is bearing holder. ওখানে একটা ব্রেকের সিস্টেম আপনি দেখতে পাবেন। এটা ব্রেক শু যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটাই ব্রেকিংয়ে কাজ করে। তাই এটা ব্রেকিংয়ে কাজ করে এই দুটো চাকার মধ্যে যখন ব্রেক লাগানো হয়। You have the brake assembly, control with vacuum air. একটু লোড দাও, এই মেশিনটা টেস্টিং করা হচ্ছে, একটু সামান্য লোড দাও। এরা কত লোড নিতে পারে এটা লোড দিয়ে দেখে নেওয়া হয় কি এই যে ওয়াগনে যে আছে ওটা लोड लेते पावे कि ना। तो प्रत्येक बोगी लोड दिए हमारा चेक करे नहीं। 400 टन का प्रेस है, इट मीन्स यू कैन गिव देयर द 400 टन लोड हियर। तो हम लोग बोगी को लोड करके देख लेते हैं कि ये 400 टन ले सकता है कि नहीं। बस छोड़ दो। तो मेन पॉइंट ওটাই, ওখান থেকে ওয়াগনের লোডটা থাকবে। এটা তো চাকা মুভ করার জন্য মেনলি ওটা সামনে দেয়। ওখানে কোনো বেয়ারিং নেই, ওখানে কোনো বেয়ারিং পার্ট নেই, মুভিং পার্ট জাস্ট দুটো এমএস পার্টই, যার সারফেস থাকে হার্ড থাকে, সারফেস হার্ড নেই। বেয়ারিং পার্ট বলতে চারটে বেয়ারিং, একটা বগিতে চারটে বেয়ারিং।
ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কারখানাটি শুধু রেল বগির পুঙ্খানুপুঙ্খ অংশ তৈরি করে তাই নয়, রেল লাইন বিশেষ করে ক্রসিং লাইন তৈরিতেও অগ্রগণ্য। ये मशीन शॉप है और यहाँ पे हम लोगों का मेनली क्या होता है कि जो भी एज कास्ट वहाँ पे कास्टिंग होके जो आता है उसका मशीनिंग यहाँ पे होता है। और हम लोग का यहाँ पे जो मशीनिंग कैपेसिटी है मोर देन 500 क्रॉसिंग्स पर मंथ है, ठीक है। तो हम लोग का और भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है दूसरे, जैसे कि ये CMS क्रॉसिंग है और इसके बाद भी हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, बहुत तरह का क्रॉसिंग यहाँ पे मशीनिंग होता है। जो हम लोग का एक्सपोर्ट का जहाँ से USA का आता है या इजिप्ट का आता है, जो भी आता है यहाँ पे मेनली मशीनिंग यहीं पे होता है। हम लोग आउटसाइड मशीनिंग करते नहीं हैं, ठीक है। और जो भी है इन हाउस मशीनिंग होता है। और अभी बोला जाए तो हमारा कंपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा मशीनिंग यहीं पे हो रहा है। और हम लोग का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी पहले जितना था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 500 क्रॉसिंग्स पर मंथ हो रहा है। हम लोग का यहाँ पे बनता है आपका CMS क्रॉसिंग होता है और यहाँ पे आपका ISCJ रेल होता है, मशीनिंग होता है। और अभी नया हम लोग का वेल्डेबल क्रॉसिंग जो इन फ्यूचर वेल्डेबल क्रॉसिंग का ही है। तो तीन तरह का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। एक तो क्रॉसिंग है, फिर ISCJ रेल है, इम्प्रूव्ड स्विच जॉइंट एक्सपेंशन, और तीसरा है आपका वेल्डेबल क्रॉसिंग, जो अभी इन फ्यूचर में इंडियन रेलवेज़ का क्या है कि स्पीड और बढ़ाएंगे, है ना। तो हम लोग का यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे ड्रिल करके हम लोग यहाँ पे फिश प्लेट को हम लोग बोल्टिंग करते हैं। लेकिन वेल्डेबल में क्या है कि ये वेल्डिंग होके आएगा, वेल्डिंग हम लोग को करना पड़ेगा। फिश प्लेट का कोई नट बोल्टिंग नहीं होगा। उसके वजह से क्या है कि और ट्रेन और ज़्यादा स्पीड से जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मशीन शॉप में हम लोग का ज़्यादातर मैंगनीज स्टील का ही क्रॉसिंग होता है। हाँ, मेटल से बनता है क्रॉसिंग, मैंगनीज स्टील का होता है। तो एडवांटेज क्या है? मैंगनीज स्टील का कास्टिंग है, जो हार्डनेस ज़्यादा रहता है। मैंगनीज स्टील मतलब हार्डनेस आपका ज़्यादा रहेगा। स्टार्टिंग में आपका वहाँ से मोल्ड बनता है, फिर वहाँ पे आपका क्या मटेरियल से मोल्ड बनता है? ये आपका बहुत तरह का मटेरियल है, जैसे कि आपका कुछ परसेंटेज निकल रहता है, कुछ मैंगनीज रहता है, कुछ आपका मैंगनीज रहता है, निकल रहता है, और कुछ मोली रहता है। बहुत एलॉय स्टील, हाँ एलॉय स्टील, हाँ टोटली एलॉय। फर्नेस में आपका मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग होने के बाद आपका मोल्डिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपका ये ढलाई होता है। फिर उसके बाद वहाँ से आता है तो फर्स्ट इंस्पेक्शन होता है। RDSO जो इंडियन रेलवेज़ के RDSO हैं वहाँ पे इंस्पेक्ट करके यहाँ पे भेजते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे क्या है कि मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग हमारा मशीनिंग होने के बाद ये सब जो क्रॉसिंग्स है इसका कुछ मेजरमेंट्स है, उसके लिए गेजिंग करना पड़ता है। तो वो गेजिंग का डिपार्टमेंट अलग है, वहाँ से गेजिंग होके आता है। फिर गेजिंग के बाद आपका DP होता है। DP मतलब कहीं क्रैक है या पिन होल्स है या कुछ भी ब्लो होल्स है, तो वो सब रिपेयर हम लोग करते हैं। करने के बाद आपका RDSO जो है इंस्पेक्शन करता है, पास करता है, पेंट कलर होता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। तो मशीन शॉप मतलब बोला जाए तो मशीन शॉप यहाँ का हार्ट है, क्योंकि मशीनिंग यदि प्रॉपरली जितना ज़्यादा मशीनिंग करेंगे उतना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट है। तो जो ऑर्डर मिलते हैं आपको, हाँ सर, आपको जो ऑर्डर मिलता है इंडिया से मिलते हैं, बाहर से भी मिलता है? इंडियन भी होता है, एक्सपोर्ट का भी ऑर्डर मिलता है हम लोग को। एक्सपोर्ट का बहुत जगह से आता है, USA से आता है, इजिप्ट से आता है, आपका पोलैंड है। लेकिन जो ट्रेन का जो व्हील होता है, व्हील तो यहाँ बनता नहीं, व्हील यहाँ नहीं बनता। कहाँ से आता है? हम लोग यहाँ पे व्हील नहीं बनाते हैं, क्रॉसिंग बनाते हैं। वहाँ पे बोगी डिपार्टमेंट है, बोगी जो बनता है वो अपने प्लांट में ही बनता है। फिर उसके बाद बोगी हमारा दूसरा प्लांट है संतरागाछी, बोगी बन के वहाँ जाता है। जो ट्रेन के जो नीचे जो चक्का लगा रहता है ना, वो बोगी यहाँ पे बनता है। बन के फिर संतरागाछी प्लांट में जाता है, वहाँ पे आपका ट्रेन मतलब जो ट्रेन है बॉडी बनता है, बॉडी बनता है। हाँ बॉडी बनता है। ये आपका नोज मशीनिंग करता है ना। तो इसमें हम लोग का बॉटम टॉप होने के बाद एक रिक्वायर्ड डायमेंशन रहता है नोज मशीनिंग का, वो नोज मशीनिंग हम लोग का इस मशीन पे होता है। क्रॉसिंग का बॉटम और टॉप होने के बाद हम लोग एंड फेस मशीनिंग करते हैं।
ये एंड फेस दोनों बोथ एंड में हम लोग एक सर्टेन डायमेंशन है, उसके हिसाब से हम लोग एंड फेसिंग मशीन करते हैं, ये बोरिंग मशीन। ট্রান্সফার চেঞ্জ করতে ট্র্যাকটা এই পোর্শন থেকে চেঞ্জ হবে। ধরুন এই দিক দিয়ে আসছে, আপনার এই দিক দিয়ে গেল, ওই দিক দিয়ে যখন আপনার ইন্টারসেকশন যেটা বলা হয় ওইটা আছে। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য মেন থিং, দিস ইজ নোজ ইজ দ্য মেন থিং, নোজ ইজ দ্য মেন পয়েন্ট, and this is all our gauges, this is the fixed area, fixed area, হ্যাঁ, this is the infiltrate area, this should be straight, this should alignment should be okay, this is the main thing of the problem, this is the turning point. কমপ্লিট হয়ে গেছে। हाँ, এটা completed, this is complete problem. These are the gauges. ये देखिए ये नहीं जा रहा है। लोगो जो चला जाएगा आपका क्रॉसिंग माइनस में ऑलरेडी हो गया। जब आपका ट्रैक जो रेल जो गुजरेगा ये माइनस हो जाएगा, इसको फ्लो नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट होने का चांस बची रहेगा। तो इसको मैक्सिमम हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये This is okay. यानी ये अगर चला गया तो रिजेक्ट हो गया। यानी ये ठीक है, ओके है। See, this is green side is go, red side is not go. If logo बैठ जाएगा means crossing is rejected. हाँ, this is standard one. See, this is the main gauge number 5. I told you ना. This is the main point. This is the ये गेज है, गेज है। This is called गेज होना चाहिए। गेज ऐसा होना चाहिए, ये पूरा बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, इसका कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। This is go and logo is like this. Logo will not sit, go will sit properly. Logo will not sit. Logo भी बैठ जाएगा तो आपका क्रॉसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर हम लोग उसको लेंथ देख के आपका एडजस्ट करके बना लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ऐसा होता ही नहीं है, 99% में 99.9% नहीं होता। ডানকুনি থানার অফিসার ইনচার্জ শ্রদ্ধেয় শ্রী তাপস সিংহ মহাশয় এবং এসআই মহাশয়া শ্রীমতী পিয়ালি বিশ্বাসের বদান্যতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ডক্টর হুমায়ুন কবির মহাশয়কেও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি আমরা। কৃতিত্ব ও সুনামের সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এই মহৎ, সুচারু, নিখুঁত, মহামূল্যবান কাজটি আমাদের জন্য দিন রাত খেটে করে চলেছে। এজন্য সবার তরফ থেকে এই সংস্থা তথা সব কর্মচারীবৃন্দকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ।